Okay. So the first question is, suppose that 5% of men and 0.25% of women are colorblind. ठीक है? A colorblind person is chosen at random. What is the probability of this person being male? ठीक है? Assuming that there is an equal number of males and females. ठीक है? So question में दिया हुआ है कि suppose that 5% of men and 0.25% of women are colorblind. This means that probability, okay, sorry. So this means that probability of colorblind given male is, I'm sorry, I'm writing the wrong way. Okay. Yeah, sorry. Okay, so the probability of colorblind given male is 5%, which is 0.005. Okay. Likewise, probability of colorblind given female is 0.0025. ठीक है, 2.5% है. ठीक है, सही है. अब आपको बोला हुआ है कि क्या फाइंड करना है. Assuming that a ratio of male and female is the same, तो उसका ये मतलब हुआ कि probability of female को हम ले लेते हैं 0.5. I'm sorry about my writing, it's really bad. And probability of male को भी हम 0.5 ले लेते हैं. ठीक है, अब हमसे पूछा हुआ है कि a colorblind person is chosen at random. What is the probability of this person being male? ठीक है, so precisely हमसे ये पूछा हुआ है कि भाई अगर probability of male given color blind, मतलब हमने अगर color blind लोगों को, कोई color blind बंदे को उठाया, उसमें से क्या probability कि वो male होगा. So that's the probability of male given color blind. आपका base rule लगेगा, which is probability of male intersection color blind. ठीक है, divided by probability of color blind. ठीक है, okay. So a probability of color blind अगर हमें निकालना होगा, we know that there are two kinds of people who are color blind. Either they are males or females. ये mutually, ये दोनों जो sets हैं, these are mutually exclusive, मतलब इनमें कोई intersection नहीं है. And they're collectively exhaustive, मतलब सारे color blind लोग जो हैं वो either male होंगे या female होंगे. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर probability of C को निकालने के लिए we can use the law of total probabilities. ठीक है, using the male and female sets. So basically, PC can then be written as P C given M, ठीक है, into PM plus P C given F, probability of F. ठीक है, because ये जो male and female है वो आपके, अगर for example if I say like that कि आपके पास अगर ये color blind लोगों का set है, ठीक है, तो ये आपको male और female उसको partition कर रहे हैं. ठीक है, that's why you can use the law of total probabilities. सही है, okay. So ये तो हमने sort of नीचे PC तो आ गया है. अब P probability of M intersection C निकालना है. ठीक है, अब I will just go into the next page. I know it's going to be a little confusing, but I'll just go back time again. Okay. अच्छा, so probability of M intersection C निकालने के लिए, M intersection C का मतलब हम C intersection M भी लिख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम बेस रूल फिर से लगा देंगे, which is probability of C given M into probability of M. ठीक है, so this is the base rule. बेस रूल को हमने sort of rearrange किया, probability of C intersection M निकालना है, इसीलिए उसको subject बना लिया. ये करने का मकसद ये है because C given M हमें already question में दिया हुआ है. ठीक है, तो that makes our life easier. That's why we are actually solving the question. तो C given M जो हमें दिया हुआ है वो है 0.005, 5%. ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था. Probability of male हमें दी हुई है 0.5, 50%. ठीक है, so this will become जो भी इसका आंसर है. ठीक है, अच्छा, अब I'll just go back and we'll just put the values. We'll just find out PC first. ठीक है, so PC first find करने के लिए PC जो था वो क्या था, I have to go back. You can see. Okay, so it is PC intersection M into PM plus PC intersection F into PF. ठीक है, so PC given M जो है वो हमें दिया हुआ है 0.00, it's 0.005 into PM जो है वो 0.5 है plus PC given F, मतलब color blind given female is 0.0025
ठीक है, 2.5% था, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल आपकी 0.5 है, ठीक है। सो दैट्स योर PC। सिंपल। अब हमने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला यही था, जो मैं फिर से लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन C निकालना है, राइट। कि अगर हम लोग कलर ब्लाइंड लोगों में से मेल, कोई भी कलर ब्लाइंड लोगों में से कोई एक इंसान उठाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बंदा मेल हो, ठीक है। सो दैट वाज P M इंटरसेक्शन C डिवाइडेड बाय P ऑफ C, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने इनको टैबुलेट कर लिया है। सो आई जस्ट राइट इट इन वर्ड्स, मतलब इन फिगर्स। सो दैट्स 0.005 इंटू 0.5 डिवाइड बाय PC जो ऊपर निकाला हुआ है, विच इज 0.005 इंटू 0.5 प्लस 0.0025 इंटू 0.5, ठीक है। सो ये आप निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा, एंड आंसर इज समवट 0.9523, ठीक है ना। सो दैट्स योर आंसर। वो सब सोल्यूशन में दिया हुआ होगा। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस क्वेश्चन, इफ यू गाइस वांट टू गो ओवर द बेसिक बेस रूल, उसमें कोई मसला है और समथिंग लाइक दैट? ओके, ओके, सो देन आई थिंक आई विल मूव ऑन। I have a question. Oh, sure. Yeah. How did we say that it's 0.5 and 0.5, the probability of क्वेश्चन male में दिया and हुआ है, female? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि assume that the proportion of males is equal to the proportion of females, ठीक है। तो 50-50 हो जाएगा ना, सही है। So 50% males and 50% females, that's given in the question, सही है। वो तो depend, that's nothing I have done or assumed, ठीक है, it's given in the question, सही है। Okay. Okay, cool. Okay, so let's just move on. You guys can understand my writing, right? मतलब, I hope it's not that bad. Sorry if it is. Okay. Anyway, so now I'm going to read up the next question, ठीक है। So next question कहता है कि earn one, मैं साथ में डेटा भी लिखती जाऊंगी ताकि easy हो जाए हमारे लिए, ठीक है। So कह रहा है earn one contains two, ठीक है, दो earns है, ठीक है। एक है earn one, ठीक है, इसमें है 2 white balls, ठीक है, 4 red balls, ठीक है। ओके, ओके, या 4 रेड बॉल्स, ठीक है। एक और अर्न है, अर्न 2, इसके अंदर है 1 व्हाइट बॉल, ठीक है, एंड 1 रेड बॉल, ठीक है। ये दो अर्न्स है। अब ये कह रहे हैं अ बॉल इज रैंडमली चोजन फ्रॉम अर्न 1, मतलब आप एक बॉल उठाओगे अर्न 1 से और आप अर्न 2 में डाल दोगे, कोई भी बॉल हो सकती है, ठीक है। सो 1 बॉल, ठीक है, यू आर चूजिंग फ्रॉम अर्न 1 एंड यू आर पुटिंग ऑन अर्न 2, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि वंस दिस इज डन, okay, so once this is done, they're saying that a ball is then randomly selected from earn 2, ठीक है। एक दफा हमने बॉल डाल दी, ठीक है, earn 1 में 2 वाइट है, 4 रेड है, earn 2 में 1 वाइट है, 1 रेड है, ठीक है। हमने एक बॉल earn 1 से उठाई और हमने earn 2 में डाल दी। उसके बाद हम एक रैंडमली एक बॉल ड्रॉ करेंगे earn 2 में से, ठीक है। अब पार्ट ए स्टेट्स दैट्स आस्किंग यू कि भाई what is the probability that the ball selected from earn 2 is white, ठीक है, मतलब कि आपको probability of white निकालना है, ठीक है। सो अब इसमें इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द फैक्ट कि भाई अर्न वन से जब अर्न 2 में हम बॉल रैंडमली उठा के डाल रहे हैं, बिफोर वी आर ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम अर्न 2, वो बॉल जो हम डाल रहे हैं वो रेड भी हो सकती है, वो व्हाइट भी हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट है ना, दैट इज बेसिकली स्पैन्ड बाय 2 थिंग्स, या तो बॉल जो हम अर्न 1 से अर्न 2 में डाल रहे हैं वो या व्हाइट होगी या रेड होगी, ठीक है। सो दीज 2 सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, तो हम उसको पार्टीशन कर सकते हैं W वाले सेट में, ठीक है। So basically, I'll just use the law of total probabilities. I'll write it down and I will just like explain it to you. So, अगर मैं white को देखना चाहूँ कि what is the probability of white, so I can just write कि probability by white हो, given कि हमने white transfer किया है, ठीक है। So I'll write it white t, ठीक है। तो probability white हमने उठाई, given कि हमने white ही transfer की थी, into probability of white transfer, ठीक है। प्लस या तो ये भी हो सकता है कि भाई हमने व्हाइट गिवन दैट हमने रेड ट्रांसफर की, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्योंकि हम दो चीजें कर सकते हैं, हम या व्हाइट ट्रांसफर कर सकते हैं अर्न 1 से अर्न 2, या रेड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ व्हाइट गिवन कि हमने व्हाइट ही ट्रांसफर की थी, ये वाली की मैं बात कर रही हूँ, दिस वन, ठीक है। अगर मैंने 1 से 2 व्हाइट डाली, ठीक है, तो 2 में व्हाइट 1 थी, अब व्हाइट 2 हो जाएंगी, ठीक है, टोटल 3 हो जाएंगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा
2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ वाइट गिवन कि हमने वाइट ही ट्रांसफर की थी इज 2/3 बिकॉज हम जब वाइट ट्रांसफर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वाइट्स इन अर्न 2 विल बी 2. दैट इज व्हाट वी वांट. अ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएंगे वो 3 हो जाएंगे. ठीक है, इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग वाइट 2 अर्न 1 में जो है हमारी 2 वाइट्स है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग वाइट्स विल बी 2/6, राइट? सो या ओके. प्लस अब दूसरा प्रोबेबिलिटी कि हमें व्हाइट मिले गिवन हमने रेड ट्रांसफर की. ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें व्हाइट मिलेगी जब हमने रेड ट्रांसफर की तो अर्न 2 में व्हाइट मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी. ठीक है, डिवाइड बाय 3 बिकॉज अब एक हमने रेड ट्रांसफर की उससे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 हो गए. इनटू की प्रोबेबिलिटी हम रेड ट्रांसफर करें. अर्न 1 में आपकी 4 बॉल्स हैं. ठीक है, रेड, और टोटल आपकी बॉल्स 6 हैं. सो 4/6. सो दिस विल गिव यू योर टोटल प्रोबेबिलिटी कि हम व्हाइट उठाएं. सही है, अर्न 2 में से. ठीक है, once after we have done the transferring process. So this will give you roughly 4/9. ठीक है, so the answer here is okay, very common. So the answer here is 4/9. Okay, 4/9. Is this clear? Okay, I hope it's clear. Anyway, so let's move on to part B here. अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज वाइट गिवन दैट अ वाइट बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम अर्न 2. ठीक है, हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भाई कि ट्रांसफर्ड बॉल हम लोग WT थी, मतलब ट्रांसफर्ड बॉल हमारी वाइट थी गिवन दैट द वाइट बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम अर्न 2. ठीक है, तो वाइट बॉल हमने अर्न 2 से सिलेक्ट किया और हमने ट्रांसफर भी वाइट ही की थी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वांट. ये सिंपल आप बेस रूल लगा दोगे, ऊपर आपका ये आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ WT इंटरसेक्शन W डिवाइडेड बाय probability of W. Probability of W हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाल लिया है, so it's going to be easier for us. A probability of WT intersection W निकालने के लिए हम फिर से बेस रूल यूज करेंगे. We'll use probability of W given WT into probability of WT. मतलब WT is कि हम white उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, that we can easily figure out from when you look at earn 1. ठीक है, divide by PW. ठीक है, ओके ग्रेट. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन WT क्या होगी, मतलब कि वाइट गिवन कि हमने वाइट ही ट्रांसफर किया है. ठीक है, सो वी नो द डायनामिक्स हियर. ठीक है, अगर हम वाइट ही ट्रांसफर करेंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट विल बी व्हाट, इट विल बी 2/3. वी नो दैट, राइट? बिकॉज जब हम वाइट ट्रांसफर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वाइट्स इन अर्न 2 विल बी 2 एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 3. सो 2/3 विल बी व्हाट आर वाइट गिवन WT. ठीक है, सो यहाँ पर आपका 2/3 आ गया इनटू प्रोबेबिलिटी कि हम वाइट ट्रांसफर करेंगे वो क्या हो जाएगी. हम अर्न 1 को देखते हैं भाई, वाइट ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 2 ही वाइट्स हैं तो 2/6 होगी. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2/6. सॉरी मैं डिवाइड यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हमने पहले निकाला पिछले क्वेश्चन में, व्हिच इज 4/9 यूजिंग द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज. सो व्हेन यू जस्ट सिंप्लीफाई इट यू विल गेट हाफ. ठीक है, एंड दैट्स द आंसर फॉर दिस. ठीक है, I hope this is clear. It was a fairly easy question. Okay, I hope it's clear. Anyway, I'll just move on to question 3. So for question 3, I have given, okay, wait. So question 3, सही है. So question 3 कह रहा है कि on rainy days, Joe is late to work with a probability of 0.3. सही है. So Joe, अगर हम लोग उसको let's write down the data, probability that Joe is late to work given that it's raining. ठीक है, because हम कह रहे हैं on rainy days जो की प्रोबेबिलिटी लेट होने की है 0.3. 0.3. ठीक है, दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ऑन नॉन रेनी डेज ही इज लेट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1. मतलब के प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट गिवन नॉन रेनी, मैं रेनी कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ. ठीक है, दैट्स नॉन रेनी इज इक्वल्स टू 0.1. ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है कि अच्छा with a probability of 0.7 it will rain tomorrow. ठीक है, so probability that it rains is 0.7. that's given to you. ठीक है, अब वो कह रहा है find part A says find the probability that Joe is early tomorrow.
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्ली निकालना है हमें, ठीक है, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट कॉम्प्लीमेंट, सो आई एम राइटिंग अर्ली एज लेट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। सो अगेन अर्ली कब होगा, सो अर्ली का जो सेट है फिर पार्टीशन हो रहा है, या रेन होगी या रेन नहीं होगी, ठीक है। सो वी कैन अगेन यूज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज टू एक्चुअली फिगर आउट व्हाट PLC इज। LC इज व्हेन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम बीइंग अर्ली। सो दो केसेस में वो अर्ली हो सकता है, या तो रेन होगी या तो रेन नहीं होगी। तो अर्ली जब होगा जब रेन होगी, ठीक है। सो दैट इज, ओ सॉरी, ओके, सो रेन होगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R प्लस अर्ली जब होगा जब रेन नहीं होगी, ठीक है, गिवन RC into probability of, yes, I will be uploading the notes. अच्छा, it's good that you speak up because I can't see the chat, ठीक है, RC, ठीक है, I'm sorry. Anyway, so this is what, so basically अर्ली होने की दो सेट है, दो समय पार्टीशन हो रहा है, या तो वो लेट अर्ली, या तो रेन होगी या तो रेन नहीं होगी, ठीक है। जब रेन होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या, वो अर्ली है गिवन रेन हो रही है इंटू प्रोबेबिलिटी रेन हो रही है, प्लस प्रोबेबिलिटी वो अर्ली है गिवन रेन नहीं हो रही है इंटू प्रोबेबिलिटी के रेन नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस इज योर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी कि वो अर्ली है गिवन रेन हो रही है, ठीक है। अब आपके पास ऊपर देखो ये पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी कि वो लेट है गिवन रेन हो रही है, ठीक है, तो वो 0.3 है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो अर्ली है गिवन रेट हो रही है कितनी होगी, 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7, ठीक है। बिकॉज दो ही चीजें हो सकती हैं, वो तो अर्ली हो सकता है वो लेट हो सकता है, तो आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होता है, ठीक है, तो 1 माइनस 0.3 इधर आ जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी रेन हो रही है हमें पहले से बता दिया उन्होंने 0.7 है, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस प्रोबेबिलिटी कि वो अर्ली है गिवन रेन नहीं हो रही है, हमें पता है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी कि वो लेट है गिवन रेन नहीं हो रही है विच इज 0.1। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब वो अर्ली है और रेन नहीं हो रही है, विच इज 1 माइनस 0.1 हो जाएगी, ठीक है। सो दैट विल बी 1 माइनस 0.1, और प्रोबेबिलिटी कि रेन नहीं हो रही है हमें पता है 0.7 टाइम्स 0.7 प्रोबेबिलिटी के साथ रेन हो रही है, तो 1 माइनस 0.7 के साथ रेन नहीं होगी, ठीक है। So this will be roughly, I will just, okay, so this will be somewhat 0.76 when I tabulate it, ठीक है। So I hope this is clear, ठीक है, because this is very important in the sense कि law of total probabilities आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा, but law of total probabilities is not that hard in the sense कि जब आप आइडेंटिफाई कर लो ना कि ये सारे शेड्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, एंड दे आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, मतलब कि वो पूरे आपके सेट को स्पैन करेगी, ठीक है, या तो रेन होगी या तो नहीं रेन होगी, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, राइट। सो दैट्स important to identify when you use law of total probabilities कि भाई आपके set, जो भी आप छोटे छोटे pieces of information use कर रहे हो, are they spanning the entire set? Yes, well enough, and they shouldn't be intersecting, मतलब वो partition करनी चाहिए, ठीक है, जो सर ने आपको क्लास में sort of एक hint like cover भी किया था, ठीक है। So I hope this is clear. So the next question is fairly easy, ठीक है। So it says that given that Joe was early, ठीक है, मतलब कि भाई given that कि भाई Joe early ही था, ठीक है, मतलब लेट कॉम्प्लीमेंट था गिवन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू want to find, ठीक है। P R given LC, it is fairly easy to point it out from the question। मुझे पता है इन वाले क्वेश्चन में गिवन वालों में थोड़ा होता है कि राइट साइड पे क्या लिखें, गिवन के लेफ्ट साइड में क्या लिखें, बट दिस इज फेयरली क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन एंड दिस विल, यू विल फिगर इट आउट, यू नो, प्रैक्टिस से होगा फिगर आउट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस जनरली, ओके। सो इसको सिंपल हम बेस रूल कर लेंगे यूज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन LC डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ LC, ठीक है, मतलब वो अर्ली आ रहा है, ठीक है। अब R इंटरसेक्शन LC को हम थोड़ा सा उसको लेट मी जस्ट एलैबोरेट इट, ठीक है। इंटरसेक्शन LC कर लिया हमने इज इक्वल्स टू P LC गिवन R, ठीक है, इनटू PR, सही है, दैट्स योर दैट, ओके। P लेट अर्ली गिवन रेन का क्या था, वी वर गिवन दिस इंफॉर्मेशन, अर्ली गिवन रेन का था लेट गिवन रेन है 0.3, तो अर्ली गिवन रेन होगा 0.7 अगेन, ठीक है। सो वी जस्ट राइट 0.7 हियर, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन भी 0.3 थी या 0.7 थी, 0.7 थी,
सो ये 0.7 आपने लिख दिया. लेट मी जस्ट चेक. या राइट. सो ये आपका हो गया. अब आपको नीचे PLC हमने पहले निकाल लिया था. इट वाज 0.76 कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन. So that's 0.76. तो ये आप सिंपल कर लोगे. Put in the value, substitute, calculate. You get something like 0.64473. ठीक है, no rocket science. Does everyone get this part? Should I move on to the next question? Okay, I hope yes. Great. Okay. This is a little question on independence. It's a fun question and really easy question. ठीक है, तो ये जरा सा थोड़ा सा like it doesn't require any of the formulas etc. But it's a little fun exercise. Okay, so ये कह रहे हैं कि in a class there are 4 first year boys. ठीक है, 4 आपकी क्लास में फर्स्ट ईयर के बॉयज हैं. ठीक है, ठीक है, और कह रहे हैं कि 6 फर्स्ट ईयर गर्ल्स हैं. ठीक है, 6 फर्स्ट ईयर गर्ल्स हैं और 4 फर्स्ट ईयर बॉयज हैं. ठीक है, एंड 6 sophomore बॉयज हैं. ठीक है, सो 6 सॉफ बॉयज हैं. ठीक है, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी sophomore girls must be present if sex and class are to be independent when a student is selected as random. ठीक है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी इस सेंस में अगर आप कोई भी आप सोफोमोर बच्चे को उठाओगे, डजेंट मैटर कि उसका जेंडर क्या है. ठीक है, जेंडर कि फीमेल वो हो उसकी प्रोबेबिलिटी और मेल वो हो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए. ठीक है, सो मतलब कि जेंडर एंड एज जेंडर एंड योर ईयर शुड बी इंडिपेंडेंट इन दैट सेंस. तो मतलब कि उनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, so this is a little different notion that we covered in class. वो उससे related नहीं है, but it's a little fun exercise to do. सही है. So what does it mean कि how many sophomore कि ये दोनों gender and class are independent. इसका मतलब ये है कि अगर आप बॉय को सेलेक्ट अगर तुम किसी लड़की को सेलेक्ट करोगे फ्रेशमैन ईयर से, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ना, दैट विल बी द सेम एज अगर जब कोई बच्चे को तुम लड़की को सेलेक्ट करोगे सोफोमोर ईयर से. ठीक है, बिकॉज जेंडर एंड योर ईयर आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई लड़की को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/10. ठीक है, अगर हम किसी लड़की को सिलेक्ट करते हैं, अगर मैं लेट्स से दिस इज प्रोबेबिलिटी 1. ठीक है, फर्स्ट ईयर से. प्रोबेबिलिटी 2 जो है वो मैं कहती हूँ कि सेकंड ईयर से चलो एक लड़की को सिलेक्ट करते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. सो इट विल बी 6/. सेकंड ईयर में कितने बच्चे हैं, देयर आर 6 बॉयज बट देयर आर सम गर्ल्स आल्सो, तो हम उसको x ले लेते हैं. ठीक है, सो इट्स 6/x, 6 + x. ठीक है, ओके ग्रेट. नाउ बिकॉज जेंडर एंड योर ईयर आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हमारी सेम होनी चाहिए बिकॉज जेंडर इज नॉट अफेक्टिंग योर ईयर. ठीक है, सो 4/10 should be equal to 6 + x. Okay, so if I just like cross multiply, it's like 24 plus 4x is equals to 60. So 4x is what? It is 36, right? And x is 9. So x is the number of sophomore girls that have to be present in order for this relationship to exist, in order for gender and year to be independent. So this was the question. It was fairly easy, but a little tricky in that sense. Okay, I hope everyone gets it. I'll just move forward. Anyway, so let's moving on to the next question. Okay, so we have around 2 questions left. Fair enough. Okay, so we're moving on to question 4 or question 5 now. So question 5. Okay, so question 5 states that suppose we have 10 coins which are such that the ith one is flipped, then heads will appear with a probability of I/10. ठीक है, तो मतलब कि भाई probability of head given I, मतलब I is the number of coin, the कौन सा coin है, first coin, second coin, third coin, fourth coin, ठीक है, is equals to I/10.
ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट देख के हमें हेड मिलेगा, heads will appear with the okay, so probability that a head will appear given that the ith coin is flipped is I over 10. ठीक है, when one of the coins is randomly selected and flipped, it shows heads. What is the conditional probability that it was the fifth coin? ठीक है, कोई भी आपने कॉइन उठाया, उसको आपने फ्लिप किया, आपने कहा हेड आ गया, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो फिफ्थ कॉइन हो? ठीक है, तो मतलब हमें जो निकालना है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी I इक्वल्स टू 5 गिवन हेड, हेड तो हमें आया हुआ है, ठीक है, ये हमें निकालनी है। सो इसके निकालने के लिए अगेन वील यूज द बेस रूल, ठीक है, उसके लिए इट इज ये होगा पी आई इक्वल्स टू 5 ओके इंटरसेक्शन h डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ h। ठीक है, इसमें अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ h निकालने के लिए वी विल बी यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज। अगेन जस्ट इमेजिन कि h जो है वो एक पूरा सेट है, ठीक है, इसको पार्टीशन करें कि भाई एज की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कौन पार्टीशन करे, या तो फर्स्ट कॉइन से आया था, या सेकंड कॉइन से आया था, या थर्ड कॉइन से आया था, या फोर्थ कॉइन से आया था, या फिफ्थ से आया था, या सिक्स से आया था, सेवन से आया था, एट से आया था, नाइन से आया था, और 10 से आया था। ठीक है, सो ये सब चीजें जो आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक है वैसे पार्टीशन कर रहे हैं। सो बेसिकली जो हम एज निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज क्या होगी? इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एज गिवन आई इक्वल्स टू 1 into probability of I equals to 1, ठीक है, प्लस probability okay, so plus probability of age given I equals to 2, probability of I equals to 2, प्लस ये करते जाएंगे until हम I equals to 10 तक पहुंच जाएंगे, right? Probability of age given I equals to 10 into probability of I equals to 10. So precisely अगर मैं इसको summation वाले format में लिखूं, so probability of age is basically the sum of I equals to 1 से लेकर आप 10 तक चले गए, probability of age given I equals to I, ठीक है, सॉरी ये J लिख देते हैं, वैसे it's gonna be much better if I write J, ठीक है, so I equals to क्या कहते हैं J given into probability of I equals to J, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ये बेसिकली वही हमने यूज किया जो हम लोग हर क्वेश्चन में यूज करते हुए आ रहे हैं। इट्स गोना बी लिटिल लॉन्गर दो बट इट्स द सेम थिंग, ठीक है। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन। सो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कैसे निकालेंगे? दिस इज फेयरली इजी इन द सेंस कि भाई हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एज गिवन आई इक्वल्स टू जे जो है वो क्या है? इट्स आई ओवर 10, राइट? सही है, सो इट्स बेसिकली आई ओवर 10, सो इट्स गोना बी लाइक दैट कि हमें क्वेश्चन में जो बोला है वो हमने निकालने का बोला है। लेट्स जस्ट गो बैक टू द क्वेश्चन, आई आल्सो गॉट लिटिल लॉस्ट के हो रखा है। एनीवे, सो हमें ये निकालने का बोला हुआ है कि ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, I इक्वल्स टू 5 इंटरसेक्शन एज। तो पहले लेट्स फाइंड आउट P ऑफ एज, ठीक है। P ऑफ एज निकालने का आसान यही तरीका है कि हमें पता है कि भाई जो है वो इसी तरह का होगा कि I ओवर 10 मतलब 1 ओवर 10, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ I इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 3, तो आपकी हर एक ही कॉइन है ना 10 में से, तो ये 1 ओवर 10 ही आएगी, ठीक है, प्लस 2 ओवर 10 इंटू 1 ओवर 10, ठीक है, प्लस 3 ओवर 10। ये 3 ओवर 10 2 ओवर 10 इसीलिए बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एज गिवन I इक्वल्स टू 1 1 ओवर 10 दिया हुआ है, एज गिवन I इक्वल्स टू 2 2 ओवर 10 दिया हुआ है, एज गिवन I इक्वल्स टू 3 आपका 3 ओवर 10 दिया हुआ है, दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबको ऐड करना है, ठीक है, या आप करते जाओगे ऐड अंटिल यू रीच 10, ठीक है। सो दैट विल बी 1 ओवर 10 इंटू 1 10 ओवर 10, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये आपकी P ऑफ एज आ गया। लाइकवाइज जो ऊपर वाला है वो आपका है एज इंटरसेक्शन I equals to 5 intersection H, so you can write it as P age given I equals to 5, probability of I equals to 5, ठीक है, so that's your numerator,
in that regard, which is, sorry, I'll just write it down what that was. It was I equals to 5, probability of age intersection I equals to 5. ओके राइट, सही है. सो ये हमने जल्दी से निकाल लेना है. सो इसका हमारा आ रहा है क्या, एज गिवन आई इक्वल्स टू 5, आपको पता है क्या है, इट्स 5/10. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल्स टू 5 इज अगेन 10, 1/10. ठीक है, सो ये आपका न्यूमरेटर आ गया, सॉरी ये आपका डिनोमिनेटर आ गया. आपने इनको डिवाइड कर लेना है एंड यू गेट योर आंसर विच इज 1/11. हम निकाल के रहे थे, वी वर फिगरिंग आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम एज आया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 5th कॉइन से आया है. ठीक है ना, सो ऑल ऑफ दिस विल बी गिवन. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन to another question. This one is a little longer and requires some proof, but it's like more fun. So yeah. Anyway, so you have to be very, very, matlab, just like listen to it very carefully. Okay. So Alice searches for a term paper in her filing cabinet, which has several drawers. Okay. She knows that she left her term paper in drawer J. Okay. With a probability of PJ greater than 0. ठीक है, the drawers are so messy that even if she correctly guesses the term paper is in drawer I, the probability that she finds it is only DI. ठीक है, so मतलब कि अगर उसे समझ भी आ गई कि भाई ये इस ड्रॉ में है, जरूरी नहीं है कि उसे मिले हर वक्त, वो उसको DI की प्रोबेबिलिटी के साथ मिलता है because the drawers are again very messy. ठीक है, Alice searches in a particular drawer, say drawer I, but the search is unsuccessful. ठीक है, conditioned on this particular condition, this event, show that probability that a paper is in drawer J given by this. ठीक है, so हमें उनने दो चीजें दी हुई हैं. Okay, I'll just like clarify it. I'll just write down all the data so that the question is much clearer to us. ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि probability कि भाई एक particular drawer I में हमें पेपर मिल रहा है, वो क्या है, it is small pi. ठीक है, probability that हम find कर पा रहे हैं in a particular given कि हमें पता हो कि इस ड्रॉअर में है, that is your, oops, what happened, sorry, okay, sorry, yeah, back. सही है, प्रोबेबिलिटी कि हम फाइंड कर पा रहे हैं आई में गिवन कि वो आई में है, वो हमें दिया हुआ है, इट्स DI. ठीक है, so these are the two pieces of information that are given in the question. कि first की probability कि एक particular drawer में उसका पेपर है वो small pi है, probability कि वो find कर पाए given कि वो उस drawer में है, it is DI. ठीक है, क्योंकि the drawers are messy, it's not possible कि वो हर वक्त find कर ले. ठीक है, अब वो हमें कह रहे हैं कि prove that PJ, okay, I'll just like write it down and then I'll explain to you. Given FIC, ठीक है, इसकी हमें दो चीजें वो प्रूफ करने का बोल रहे हैं. ठीक है, इज इक्वल्स टू, फर्स्ट जो पार्ट है वो बोल रहा है इज इक्वल्स टू स्मॉल PJ, स्मॉल PJ डिवाइडेड बाय 1 minus PI DI. I'll just elaborate it. Given J is not equal to I. ठीक है, okay, okay. So question हमें ये कह रहा था, Alice searches in a particular drawer, say drawer I, but the search is unsuccessful. ठीक है, मतलब कि गिवन की सर्च हमारी अनसक्सेसफुल है, मतलब FI फाइंड नहीं कर पाई, FIC मतलब FI कॉम्प्लीमेंट वो फाइंड नहीं कर पाए. ठीक है, कंडीशन ऑन दिस इवेंट शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेपर इज इन ड्रॉअर J, प्रोबेबिलिटी दैट द पेपर इज इन ड्रॉअर J इज PJ गिवन कि वो फाइंड नहीं कर पाए I में, हमें शो करना है कि एक्चुअली PJ over 1 minus PI DI when J is not equal to I. ठीक है, so I hope this is clear. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, so इसको हम elaborate, like let's just like break it down. हमें पता है conditional probability how it works. We know that PJ given FIC, we can write it down as PJ intersection FIC divided by PFIC. ठीक है, this is the simple base rule that we've been using throughout. ठीक है, okay. Now let's move on to PFIC first. ठीक है, so again we'll use the law of total probabilities. ठीक है, so PFIC, let's see how we can partition it. ठीक है, so हमें फाइलिंग कैबिनेट में मिला नहीं पेपर. ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज, या उसमें वो था या वो उसमें नहीं था. ठीक है, there are like two possibilities, भाई either वो था already या नहीं था. ठीक है, so we can easily use the law of total probabilities. ठीक है, okay.
सो प्रोबेबिलिटी दैट हमें नहीं मिला गिवन के वो था, मतलब पी आई मतलब वो था इनटू पी आई, ठीक है, अगेन प्लस हमें हमें पेपर नहीं मिला गिवन के वो था भी नहीं, सही है, वो था भी नहीं. Oops, I'm just sorry again, I mean pressing this button. Oh yeah, sorry. Okay, yeah. So, um, so ये जो दूसरा पार्ट है कि हमें मिला नहीं गिवन कि वो था भी नहीं, ठीक है, मतलब पी आई कॉम्प्लीमेंट इंटू पी आई सी, ठीक है. सो ये दो पॉसिबिलिटीज है कि हमें नहीं मिला वो था, नहीं मिला वो नहीं था, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी फिगर आउट कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि हमें मिला नहीं पेपर एक पर्टिकुलर ड्रॉर में, आईथ ड्रॉर में, ठीक है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी कि वो था ही नहीं, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें मिला नहीं और था, वो क्या प्रोबेबिलिटी है. हमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें मिलेगा जब वो था, like you know when we can find it given that it was there is di. तो मतलब what is the probability that we are not able to find it when it was there, it is 1 minus di. Make sense? सही है. So probability of fi complement given pi is 1 minus di, ठीक है. So that's the first part. Into probability of pi हमें दी हुई है जैसे small pi plus probability that we are not able to find it given that वो था ही नहीं, इसकी तो probability सिंपल 1 आती है, जब नहीं होगा तो कैसे मिलेगा, ठीक है. into probability of PIC, मतलब कि what is the probability that the paper is not in a particular drawer. We know that the paper is in a particular drawer with the probability. Okay, so it's recording now. Anyway, so for question 6, what we were doing was that हमें निकालना था कि we were given a proof. सही है. What we were given to prove was precisely, I will just write it down as is to repeat it, in case some people have just joined. Yeah. So it says that we need to find that the probability, we need to prove that the probability of Pj given, I'll just explain it to you, let me write it down, FIC निकालनी है, ठीक है. सो बेसिकली देयर इज दिस फाइलिंग सिस्टम, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी के एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो एक ड्रॉवर में है, आई ड्रॉवर में है, वो है पी आई, ठीक है. प्रोबेबिलिटी कि हमें वो मिल जाता है बिकॉज ड्रॉवर्स आर रियली मेसी, सो मिल नहीं सकता. तो प्रोबेबिलिटी फिर हमें मिलता है गिवन दैट पी आई है, मतलब उस ड्रॉवर में है, इज एक्चुअली गिवन एज डी आई, ठीक है. अब वो हमें कह रहे हैं प्रूव करो कि ये जो चीज है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है इज equals to 1, okay, so it's pj over 1 minus pi di when I is not equal to j. ये हमें प्रूव करने का बोल रहा है, ठीक है. सिंपल एज दैट. तो उसके लिए मैंने बेसिकली इसको sort of खोला, सही है. यूज द बेस रूल अगेन. सो what we do here is we use the base rule, so that's pj intersection fic divided by fic, ठीक है. what we figured out earlier was that हमने pfic निकाल लिया था. that was given as okay, so that was basically हमने निकाला था, was 1 minus di into pi plus 1 minus pi, right? Okay, so that was if I just like tabulate it, it's 1 minus di pi, ठीक है. Sorry, okay, anyway, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया. न्यूमरेटर के लिए हम अगेन यूजिंग द बेस रूल. इट probability of pj intersection fic will be probability of fic given pj into probability of pj. ठीक है. सो दिस वाज बेसिकली इसको निकालने के लिए इट्स फेयरली इजी इन द सेंस के हमें पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी कि भाई
हमें मिलेगा नहीं आई में, गिवन दैट जे में है, ठीक है, तो ये तो आपकी क्या होगी, 1 ही होगी, राइट। अगर जब जे में है तो हम इसमें बेसिकली इन दिस प्रूफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, राइट, सही है। सो वो है ही नहीं, हमें आई में कैसे मिलेगा जब जे में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कि वो पीजे में है, सो पीजे में इट्स गोना बी स्मॉल पीजे, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रूफ इज डन, हमने सिंपल बेस रूल के वही मैंने जगहों पे टैब लाइक इनपुट कर दिया है, दिस पार्ट इज पीजे एंड द नीचे वाला पार्ट इज दिस वन, सो इफ आई जस्ट राइट इट डाउन, सो योर आंसर इज पीजे ओवर 1 माइनस पी आई डी आई, ठीक है, 1 माइनस पी आई डी जे, ठीक है, PIDI. So this is the first proof which is done. अब जो second proof था वो कह रहा था कि prove something given that I is equal to J, ठीक है। So वो कह रहा है कि probability of कि हमें नहीं मिले I में given that sorry okay sorry, तो दूसरा वाला वो कह रहा है कि probability कि हमें PI given FIC मतलब हमें मिला नहीं है, ठीक है, हमें उन्होंने कहा था कंडीशन करो ऑन द फैक्ट कि हमें मिला नहीं है इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, ये हमें कह रहे हैं कि प्रूफ दैट इज इक्वल्स टू पी आई 1 माइनस डी आई सॉरी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी आई डी आई, ठीक है। सो ये हमें प्रूफ करने का बोल रहा है गिवन दैट आई इज इक्वल्स टू जे, अच्छा इसको प्रूफ करने के लिए अगेन विल बी ओपनिंग इट अप, ठीक है। सो इसको अगर हम ओपन करेंगे बेस रूल लगाएंगे, सो दैट विल बी एफ आई सी गिवन पी आई इंटू पी आई, तो इसको अगर हम सॉर्ट ऑफ ओपन करें, सो इंटरसेक्शन वाले का ये आ जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है ओके, सो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें आपका पी ऑफ एफ सी नीचे आएगा एफ आई सी, सो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाल लिया था, इट वाज 1 माइनस पी आई डी आई, सो इट्स ऑलरेडी डन, तो हमें सिर्फ ऊपर वाला निकालना है, सो इट्स फेयरली इजी टू डू दैट। प्रोबेबिलिटी कि एफ आई मतलब हमें मिला नहीं, गिवन कि वो उसमें है, वो क्या है, हमें पता है कि जब था और मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी डी आई थी, तो नहीं मिलेगा तो 1 माइनस डी आई हो जाएगी, राइट, इनटू प्रोबेबिलिटी कि वो आई में होगा वो पी आई है, डिवाइड बाय 1 माइनस पी आई डी आई इज बिकॉज ऑफ पी प्रोबेबिलिटी के वो हमें मिला नहीं है, दैट्स इट, राइट। सो ये प्रूव हो गया, इट वाज फेयरली लिंक्ड टू द पुराना वाला पार्ट, it's proved. Do you guys have any questions? Because like, do you guys have any questions here? Or should I just stop because we're at the end of the tutorial? We've done 6 questions. I will just stop recording.